नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की रिमेनिंग क्वेश्चंस लाई हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच सेल ऑफ स्टैटिक रैम कंटेन्स आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस which will be correct. See, before discussing it, let me tell you few things about static RAM. Static RAM is also denoted as SRAM. Okay, SRAM. SRAM memories consist of circuits that are capable of retaining the stored information as long as the power is applied. Because here RAM is applied, so RAM means the contents are only there if the light is there. If the electricity is available there, the contents will be there only. As soon as the power supply is switched off, we lose the contents. So it requires constant power. So SRAM memories are used to build cache memory. Okay, so each cell of SRAM contains 4 or 6 MOS transistors. So out of the given options, only one will be the right answer. It is costlier. देखिए, out of static RAM क्या होता है? It is costlier than dynamic RAM. It requires a constant power supply. That means it consumes more power than DRAM. It consumes more power than DRAM. Due to complex internal circuitry, less storage capacity is available compared to the same physical size of the DRAM memory chip. So it has less storage capacity. It has less storage capacity. It has a lower access time, so it is faster. It has a lower access time, so it's faster in use as compared to DRAM. It has low storage density. Next question is, see, you have given a table, you have given a block diagram, so you have to identify that what does the block ABCD signify. See, I have to tell you that here block D, this is the diagram. So here block D means block A is the output port. Block A is the output port. Block B is the digital to analog converter. Block C is comparator itself. Okay, and block D is SAR. That means successive approximation. This is full name is successive approximation register. Okay. Now see, one of the most common A to D converters that are going to be used in applications requiring a sampling rate under 10 MSPS is ADC, SAR ADC. This is ideal for applications requiring a resolution for 8 to 16 bits. See, यहाँ पे क्या होता है SAR ADC में, the analog signal is sampled and holded. For each bit जो SAR के logic outputs हैं, लॉजिक आउटपुट्स अ बाइनरी कोड टू द डैक को ये लॉजिक आउटपुट देता है. द कंपैरेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द करंट बिट. वंस ऑल बिट्स हैव बीन अप्रॉक्सीमेटेड, द डिजिटल अप्रॉक्सीमेशन इज द आउटपुट. ओके, सो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी ए का 4, दैट मीन्स ए का होगा आउटपुट पोर्ट, देन बी का 2 डैक, सी का 1 कंपैरेटर हो जाएगा, एंड डी का 3 सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी. सी, ये तो बहुत इजी है. इसको कैसे करेंगे? डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी, देखिए 110 है, तो इसका हमें क्या निकालना है? डेसिमल. तो 0 1 2 कितना हो जाएगा ये? 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0. So it will be 4 plus 2 plus 0, so it is 6. Okay, and अब हमें निकालना है 0.001 का, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3. That means it will be how much? It will be 0 into 2 minus 1 plus 0 into 2 minus 2 plus 1 into 2 minus 3. So it will come out to be as 1 by 8, that means 0.125 base 10. So it will be 6.125 base 10. Okay, so the answer will be second option. Next question is, if input to T flip-flop is 200 Hz signal, then what will be the output signal frequency if 4 T flip-flops are connected in cascade? See, if we pass the input signal to a single T flip-flop है अगर, we get half of the frequency at the output. F output is equal to half of frequency. ठीक है, अब इसमें आप देखिए, जैसे ये है आपका एक कोई डी फ्लिप, ये है जैसे दिस इज डी,
यहाँ पे आपने क्या लगाया है, एफ इनपुट इज द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ये क्लॉक लगाई है, यहाँ पे क्या है, क्यू है, यहाँ क्यू बार है, यहाँ पे एफ डिवाइडेड बाय 2 है, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज योर फीडबैक लूप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो एफ आउटपुट होगा इट विल बी एफ इनपुट बाय 2 टू द पावर n। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी दी है यहाँ पे, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज, ओके, एंड 4 टी फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड, तो n इज इक्वल टू हाउ मच, 4। तो f आउटपुट कितना हो जाएगा, f इनपुट बाय 2 टू द पावर n, दैट मीन्स 200 बाय 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 200 बाय 16। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 12.5 हर्ट्ज। तो आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा, नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशनल सर्किट इज। देखिए ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ओके कोई बात नहीं। देखिए इसमें जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले तो हम इसमें आउटपुट निकाल लेते हैं। देखिए आउटपुट ऑफ फर्स्ट ऑर गेट, इसका जो आउटपुट है यहाँ पे कहाँ है, P1 है, P2 है एंड P3 है। तो ये है आपका P1 प्लस P2 बार प्लस P3 बार। आउटपुट ऑफ सेकेंड ऑर गेट इज P1 प्लस P2 बार प्लस P3। आउटपुट ऑफ थर्ड ऑर गेट इज, देखिए P1 है, P2 है एंड P3 बार है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 बार हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड है तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 बार प्लस P3 बार, ओके, डॉट P1 प्लस P2 बार प्लस P3, ठीक है, एंड प्लस सॉरी डॉट P1 प्लस P2 प्लस P3 बार। जब आप इनको पूरा सॉल्व कर देंगे तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि A प्लस बी डॉट A प्लस सी, दिस इज इक्वल टू A प्लस बी सी, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब आप देखें, यहाँ पे A मैंने मान लिया है कि P1 प्लस P2 बार है, और B मैंने मान लिया है कि B जो है आपका ये है P3 बार, ओके, एंड C है आपका P3। ठीक है, तो जब आप इनको पूरा सॉल्व करेंगे सो व्हाट यू विल गेट, अगर आप इसको मान लें कि ये जो है A है और ये B है, ठीक है, और C आपका P3 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 प्लस P2 बार डॉट ये कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 बार, ये हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आप चाहे तो इसको एक बार मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। ठीक है, P1 प्लस P2 बार यहाँ कॉमन है ना, तो P1 प्लस, हाँ ये जब कॉमन है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक चीज़ भी लिख देती हूँ, जैसे ये है, ये दोनों यहाँ पे टर्म्स कॉमन है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ P1 प्लस P2 बार एंड प्लस P3, P1 प्लस P2 बार प्लस P3 बार, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो गया, ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस देखिए ना ये दोनों कॉमन है ना, P1 प्लस P2 बार एंड प्लस P3 बार एक में है और एक में क्या है, P3 है, तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकती हूँ, P1 प्लस P2 बार, देखिए मैं इसको सॉरी ये इसको मिटाती हूँ, रुको, इसको मैं लिख सकती हूँ A प्लस बी सी ना, तो P1 प्लस P2 बार प्लस P3 बार डॉट P3, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो बचा आपके पास ये। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू P1, B इज इक्वल टू P2 बार एंड C इज इक्वल टू P2 प्लस P3 बार। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, पूरा सॉल्व करेंगे जब तो कितना हो जाएगा, इसको आप मैं चाहूँ तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, P1 प्लस P1 P2 प्लस P1 P3 बार प्लस P2 बार P1 प्लस P2 P2 बार प्लस P2 बार P3 बार, तो ये जीरो हो गया, और यहाँ पे मैंने P1 लिखा प्लस P1 P2 लिखा प्लस P1 P3 बार लिखा प्लस P1 P2 बार लिखा एंड प्लस P2 P3 बार लिखा।
इसको पूरा सॉल्व करिए। P1 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस P2, तो ये 1 हो गया, प्लस यहाँ पे P1 P3 बार प्लस P2 P3 बार प्लस P1 P2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, P1 प्लस P1 P3 बार प्लस P2 P3 प्लस P1 P2 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन P1 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस P3 बार, ये 1 हो जाएगा, प्लस P2 P3 एंड प्लस P1 P2 बार। इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। P1 तो अलग एक से टर्म आ ही रही है। अब इसमें आप देखिए P2 बार P2, इसको आफ्टर ऑल सॉल्व करके आपका जो राइट आंसर आ रहा है, ये आप कॉपी बुक निकाल ले क्योंकि लेंदी हो जाएगा, इसका ये आंसर आ रहा है। मैंने आपको इतना सॉल्व करके बता दिया है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इस तरीके से आपने करना, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 प्लस P2 बार था एंड डॉट P1 प्लस P2 प्लस P3 बार था, तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते थे, P1 प्लस P2 बार, देन P2 आपने कॉमन ले ली, P2 बार P2 प्लस P3 बार, ऐसे कर लिया आपने। फिर इसको आपने सॉल्व करके P1 प्लस P2 बार P2 देन P2 बार P3 बार, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ था, तभी आपका ये तो जीरो हो गया, तो यही बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the advantages of a programmable logic device over fixed function ICs? Reduction in board space requirement, reduction in power requirement, or design security? The answer will be all the three options are correct. PLDs क्या होते हैं? PLDs होता है, it is an IC with a large number of logic gates. जो PLD होता है, programmable logic device, ये क्या होता है कि IC होता है with a large number of logic gates which is programmed by software to perform a specific digital function. It can be changed according to the application, like PLA हो गया, PAL हो गया, FPLA हो गया, PROM हो गया आपका, गैलियम GAL हो गया, FPGA हो गया, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके क्या हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है। तो इनको स्मॉल, दे नीड स्मॉल बोर्ड स्पेस, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इज मोर, लेस पावर इज रिक्वायर्ड to operate this PLD and programmable and less time required to design. तो आंसर विल बी 4। तो मैंने अभी अब इतना ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको देखती हूँ कौन सा कोई है, कोई क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके लाएंगे। द हाईएस्ट प्योरिटी इंटरप्ट इन 8085 इज, दिस इज योर होमवर्क। ओके, टिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।